Good afternoon, everyone. Good afternoon, class. Welcome back with the new session, everyone. Good morning. Oh, good morning. Sorry, good afternoon. Good afternoon जी, आजो आजो जल्दी जल्दी क्लास ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਰੇ ਡੇ 30 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ 30 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਬਿਲਡ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਆਜੋ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡੇ 30th ਕਲਾਸ 30th। ਸੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਰਾਜੇ 23rd ਨੂੰ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਜੋ ਰਾਜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਜੋ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਡਰਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਸੋ ਯੈਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ। ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀ ਅਡੋਪਟਿਡ ਐਨ ਕੈਟ ਯੈਸਟਰਡੇ, she adopted the cat yesterday, she adopted a ਜਾਂ ਫਿਰ she adopted cat yesterday without any article। ਜੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਚ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਐਨ ਦਾ ਜਾਂ ਏ ਆਏਗਾ? ਐਲੀਫੈਂਟ, ਏ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਐਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਏਗਾ? ਐਨ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਚੀਆਂ। ਕੈਟ, ਕੈਟ ਸਾਊਂਡ ਕਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ ਦੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕੈਟ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜੋ, ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਅਗੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਸੋ ਡੈਸ਼ ਈਗਲ ਫਲਾਈਂਗ ਅਬਵ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਅ ਈਗਲ, ਐਨ ਈਗਲ, ਦਾ ਈਗਲ ਜਾਂ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਈਗਲ, ਈਗਲ ਸਾਊਂਡ ਕਿੰਦੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं, ईगल। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एन ईगल, ठीक है। बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए जी मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 की कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बारे तुसी दसना है। आ गया जी पैडागोजी का क्वेश्चन। इट इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस प्रोसैस। क्यों? इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूस प्रोसैस नहीं है, ठीक है जी। इट इज़ अ intimately related to the educational objectives, it is a different from the teaching learning process या फिर it demand standards of performance। right answer क्या आ जाएगा जल्दी जल्दी दस दो। हाँ जी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इट इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस प्रोसैस, नहीं जी। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। क्यों डिफरेंट है? आप टीचिंग लर्निंग प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਗੁੱਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ, a good language proficiency test is entirely made up of only one type of question, नहीं जी। focus on essay type question, ठीक है जी देख लेने हैं। combination of objective short and essay type questions, okay जी। is completely based on objective type। so दसो A option, B option, C या फिर D, which one is the correct answer?
हाँ जी, ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ? ए ऑप्शन, बी सॉरी ए तो निगलैक्ट ही हो गया है ना। फोकस ऑन एसे टाइप क्वेश्चन, प्रोफिशेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਮ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ, ਬਟ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ मूव ਕੀਤਾ। सो डी ऑप्शन बननी नहीं, राइट आंसर आपने क्या आ जाएगा सी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहे हैं, इन अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT इज द फोकस इज ऑन एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी। ओवर फ्लुएंसी कह रहे हैं, फ्लुएंसी एंड द मीनिंग कम्युनिकेशन, लर्निंग ग्रामर बाय हार्ट, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग। जल्दी जल्दी आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 5 का। CLT in communicative language teaching the CLT the focus is on, किंदे दा फोकस हुंदा राजे? एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, लर्निंग ग्रामर बाय हार्ट, ट्रांसलेशन ओवर मदर टंग। डेफिनेटली किंदे च होएगा? ठीक है जी, ना ही सी बनता पे, ना ए बनता पे, ना डी ऑप्शन बनता पे। सो राइट आंसर आपने की बन जाएगा बी ऑप्शन। सो एक बार राजे आप पंफलेट नूं जरूर चेक कर लेना, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 ਤੇ मूव करते हैं। अ स्टूडेंट रैपिडली कन्फ्यूज, मतलब वार की हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है वर्ब टेंस वाइल राइटिंग, ठीक है जी, लिखन टाइम। सो व्हाट इज द बेस्ट रेमेडियल अप्रोच? इग्नोर द मिस्टेक, बच्चों ने इग्नोर नहीं करना, कदे नहीं करना। कंडक्ट टारगेट ग्रामर गेम्स एंड एक्सरसाइज, ये तो अच्छी लग रही है। प्रमोट पीयर करेक्शन इन पब्लिक, पनिश फॉर रिपीटेड एरर्स, नहीं राजे, बी विल बी राइट आंसर, है ना। तो सारे भी बी ऑप्शन लगती भी है ना, बी बिल्कुल ठीक है, ध्यान नाल देख लो, समझ लो इन्हू। क्वेश्चन नंबर 7 ते मूव कर दिया। NCF रिकमेंड्स मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्राइमरली टू। मल्टीलिंगुअल की होंदा है? जो दो भाषावां तो वध भाषावां दा आपां यूज़ करते हैं या ज्ञान लैंदे हो, आपां मल्टीलिंगुअल्स कह देने। सो कन्फ्यूज लर्नर्स विद द मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, डिस्करेज रीजनल लैंग्वेज, स्ट्रेंथन कॉग्निटिव एंड द कल्चर डेवलपमेंट, या फिर प्रमोट इंग्लिश डोमिनेंस। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। NCF ਰਿਕਮੈਂਡਸ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਗੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। डिस्करेज करना है? नहीं जी। प्रमोट इंग्लिश डोमिनेंस? नहीं जी। स्ट्रेंथन बड़ी पॉजिटिव टर्म है। कॉग्निटिव एंड कल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। सो हाईएस्ट वेटेज के अकॉर्डिंग भी देखिए तो अंडरस्टैंडिंग बिहाव से भी देखिए, तो अपना राइट आंसर की बनता पाया सी ऑप्शन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, विच फीचर बेस्ट डिफाइन द डायरैक्ट मैथड? डायरैक्ट मैथड की होंदा राजे? रिलायंस ऑन द बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, हाँ डिक्शनरीज, यूज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द टीच मीनिंग टू टीच मीनिंग, या फिर टीचिंग वोकैबलरी एंड ग्रामर थ्रू द रियल लाइफ कन्वर्सेशन। बस जी, आंसर मिल गया सानू कितों, जो उन्होंने की किया रियल लाइफ। रियल लाइफ मतलब बच्चा की है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। एक्टिविटी क्यों होंदा रियल लाइफ दे विच? ध्यान नाल देखियो, जेकर मैं क्लास दे विच कोई एवें दी एक्टिविटी परफॉर्म करवावां जिंदे नाल बच्चा बाहर दी चीज़ां नूं समझ सकदा है। लेट अस सपोज आप एक ईवीएस एक एग्जांपल लैके चलिए, बच्चे नूं मैं पेड़ दे बारे दसना है, या चलो ठीक है सेव वाटर वाला कंसैप्ट आ गया, कुछ भी आ गया है ना, वाटर दे लई भी जेकर आप बच्चे नूं समझाना है तो आप बाहर विजिट करवा सकते हैं, है ना। स्कूल के दायरे के अंदर ही जोड़े वॉशरूम वालियां टैप होंदियां ने उनदे तो, या पानी पीने वालियां टैप्स तो उत्थों समझा सकते हैं। तो बच्चे नूं की मिलेगा? रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके नाल रियल लाइफ कन्वर्सेशन होएगी, बच्चे की वकैब इनहेंस होएगी। सो एक बच्चे की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं। सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बारे आप लास्ट लैक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कराया। हुण तुहाडा होमवर्क क्वेश्चन बेसिकली इस क्लास दे विच ये रहने वाला है कि थर्ड नैशनल या NEP
थर्ड NEP दी डेट एक्चुअल च है केड़ी, पूरी डेट मैंशन करनी है, ठीक है, पूरी एग्जैक्ट डेट। थर्ड नैशनल एजुकेशन पॉलिसी केड़ी सी ते डेट विद ईयर सारा कुछ मैंशन करना है। एज पर NEP 2020 द प्रेफर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 शुड बी, सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, होम लैंग्वेज और मदर टंग। डेफिनेटली जो प्री प्राइमरी या प्राइमरी वाला बच्चा है, प्राइमरी या एलीमेंटरी जिन्होंने आप कह दें इस टाइम बच्चे आप होम लैंग्वेज या मदर टंग के नाल सिखाना है, सो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है जी। एंड नाल होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ इन्ना ही नहीं रहेगा, तुझे सारा मैंने एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कदों आई सी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, सैकेंड एजुकेशन पॉलिसी, बस तुसी इत्थे ईयर मैंशन करने हैं तिन्ना ते, एंड दिस डेट विद ईयर एंड दिस सिर्फ ईयर मैंशन करने हैं, तो मैं सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स आंसर देखने, ठीक है। दैन आपां फिर नैक्सट डे अनाउंस करांगे। अ लर्नर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर विदाउट बीइंग टॉट ग्रामर रूल्स। हुण जदों आपां बच्चे नूं ग्रामर रूल्स नहीं सिखा रहे, उस पॉइंट नूं आपां की कह दिंदे आ लर्निंग, रोट मैमोराइजेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर पैसिव लर्निंग। डेफिनेटली की कहांगे लैंग्वेज एक्विजिशन। इत्थे बच्चा की सबकॉन्शियस माइंड दे नाल सिखदा है। सबकॉन्शियस माइंड किहड़ा हुंदा है, जो बच्चा बिना किसी टेंशन तो प्ले वे दे नाल सीख लैंदा है, प्ले वे मैथड दे नाल गल्लां गल्लां च सीख जांदा है, ठीक है। इनफॉर्मल वे दे नाल सीखदा बेसिकली, प्ले वे मैथड इनफॉर्मल वे दे नाल सीखदा है। पॉइंट क्लीयर होया? हाँ जी राजे, एक छोटी जी इंफॉर्मेशन, 11 अक्तूबर नू अपना फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाना है, ठीक है जी, जोड़ा कि बेसिकली मास्टर कैडर, ईटीटी कैडर, PSET पंजाब गवर्नमेंट जॉब सारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बच्चे ने हाले तक रजिस्टर नहीं करवाया राजे, तुसी रजिस्टर करवा लो, तो इस नंबर पर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस नंबर पर तुसी गल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, नॉट थैंक यू फॉर अ क्लास, जस्ट फॉर अ इंफॉर्मेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सैकेंड लैंग्वेज लर्निंग डेवलपिंग लिसनिंग स्किल इज़ अ क्रूशियल बिकॉज। हुण इत्थे किंदी गल होई है, लिसनिंग स्किल। लिसनिंग मतलब सुनना, हुण सुनना मतलब सिर्फ तुसी सुनना नहीं है, नाल की कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। कई बार अंडरस्टैंड वर्ड ना देख के की दे देंगे ने, कॉम्प्रीहेंड, मतलब की है अंडरस्टैंड करना। सो आंसर क्या आएगा, इट रिप्लेस रीडिंग, रिप्लेस थोड़ा ना करेगा, रिप्लेस होंदा चेंज। इट प्रमोट्स द पैसिव लर्निंग, it builds comprehension and sport speaking, it is the only necessary skill। only क्यों, हाँ जी, पैसिव लर्निंग होएगी ना ना ना, राइट आंसर की आ जाएगा अपना सी ऑप्शन, पॉजिटिव जी पूछा सी। इट बिल्ड्स कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पोर्ट स्पीकिंग। जेकर आप सही सुनांगे, सही बोलांगे, सही पढ़ांगे, सही लिखांगे, ये चारों आपस में इंटर कनैक्टेड ने या इंटरलिंक ने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट यूज आ जीरेंड करैक्टली। जीरेंड के बारे में ऑलरेडी दस चुकी हैं ग्रामर के, तुसी दसो। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं जी, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या फिर फिर नहीं आएगा, मैट नहीं आएगा, आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू। हुण इत्थे जस्ट एक बी ऑप्शन तो एक डी ऑप्शन च जस्ट फर्क ही है, ING दोनों च लगे तो जीरेंड मतलब ING की गल तो होएगी। बस इत्थे दसो प्रैपोजिशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तुसी आंसर करना है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू या फिर आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड मैं तुहानू देख रहा सी टू मीटिंग यू, मतलब तुहाडे नाल गलबात करन लई, ठीक है। सो बी विल बी राइट आंसर। सो जो तुहानू लगे कि सानू नहीं पता मैम प्रैपोजिशन कित्थे यूज होना, बोल के देख लिया करो, अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाएगी। बाकी रूल्स वगैरह सारा कुछ करवावांगे, डोंट वरी। हाँ जी, करैक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान नाल देखियो। ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई अराइव्ड, ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई अराइव, he had finished the work। साफ पता चल रहा है आंसर। चलो तुसी दसो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी। पास्ट परफेक्ट की गल हुई है, पास्ट परफेक्ट की आएगा, हैड आएगा, फिनिश्ड आएगा तो आई अराइव्ड आएगा, मतलब सारी गल कि होएगी पास्ट विच। सो जिन्ना बच्चे ने भी सी ऑप्शन लगाई है उन्होंने ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ राजे चैक कर लेना, ठीक है, क्यों गलती की है तुम देख लेना। लास्ट सेकंड क्वेश्चन राजे, मॉडल वर्ब के बारे दसना है। शी कैन स्विंग्स वेल, सिंग्स वेल, सिंग्स मैं कल भी दसिया, सिंग्स वेल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं।
हुण मस्ट माइट या शुड, इत्थे एस नहीं आएगा, शुड। राइट आंसर दसो की आएगा। शी कैन स्विंग्स वेल, शी मस्ट टू गो होम नाउ, शी माइट कम टू द पार्टी, या फिर शी शुड स्टडी हार्डर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? मैं दसिया सी कैन एस नहीं आएगा, इत्थे टू नहीं आएगा, ठीक है जी। इत्थे सेंटेंस भी नहीं सही बनता पे क्योंकि एस नाल ग्रामैट्रिकल एरर आ गया, ठीक है। पेपर दे विच मतलब एरर ही दिता होया सी, ये तो जस्ट मैं तुहानूं समझाउण लई कटका दिता। यस, सी ऑप्शन दे विच देखो, शी माइट कम टू द पार्टी, शायद वो मेरी पार्टी लई आए। माइट मतलब शायद, शायद नूं रिप्रजेंट करदा है, शायद वो मेरी पार्टी विच आए। शी माइट कम टू द पार्टी, सो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। पॉइंट क्लीयर होया। सो लास्ट क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर कर दो राजे। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। हुण इत्थे एडवाइस दी गई है, माइट शायद तुहानूं कर लेना चाहिए, नहीं जी। वुड नहीं आएगा, विल नूं जदों आपां पास्ट दी सेंस दे विच यूज करना होवे उदों वुड लगाने आ। हुण दसो कैन आएगा, यू कैन फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, या फिर शुड आएगा। हुण जिहड़ी कैन दी गल है ना, नॉर्मल सेंस च कीती हुई है, ठीक है। कैन किते किते यूज हुंदा है, एबिलिटी दे लई, ਜਦੋਂ या तो आप परमिशन देनी होंगी है, परमिशन लैनी होंगी है। लाइक सपोज जेकर मैं कहां कैन आई टेक दिस नोटबुक, कैन आई टेक दिस नोटबुक, मतलब मैं तुहाडे तो पुछ रही हाँ, फिर तुसी आंसर किहदे च करोगे, यस यू कैन, यस यू कैन। बट जेकर मैं मे भी किहदे लई हुंदा, परमिशन दे लई। मे ते कैन दोनों परमिशन लई हुंदे ने। जेकर मैं सेंटेंस मे च बनाया, मे आई कम इन मैम, यस यू मे, है ना, उदों आंसर भी मे च ही होएगा। सो इत्थे राइट आंसर शुड। शुड मतलब जरूरी नूं ही रिप्रजेंट करदा है, ठीक है। यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, तुहानूं टीवी देखण तो पहला डेफिनेटली आपदा होमवर्क करना चाहिए। सो डेफिनेटली नूं इत्थे कौन रिप्रजेंट कर रहा है, शुड। क्लीयर है जी। सो यही से अज दे अपने 15 क्वेश्चन। आई होप कि तुहानूं अच्छे लगे होणगे, पसंद आए होणगे। बाकी मैटर नहीं करता तुहानूं पसंद आए कि नहीं, क्योंकि पेपर दे विच जेकर तुहाडी अंडरस्टैंडिंग इत्थों होएगी तां ही फायदा है। जे अज तुहानूं इत्थे चीज़ां औखियां लग रही ने, पेपर 'च सौखियां लगणगियां। जे इत्थे तुहानूं चीज़ां सौखियां लग रही ने तां आपां होर औखे लैवल की तैयारी करांगे, ताकि पेपर विच सानूं ये ना रहे कि आपां पहला सौखा कर लिया, पेपर विच औखा आ गया, है ना। सो आपां दोनों परसपैक्टिव नूं नाल लैके चलांगे। अज दा सैशन राजे आपां इन्ना ही रखते हैं। जिन्ना बच्चों ने फ्री WhatsApp ग्रुप नहीं ज्वाइन करिया, कर लिया जे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर एड ऑन हो जाना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो राजे डिस्कस कर लो। आफ्टर दैट आपां सैशन नूं इत्थे ही एंड अप करते हैं, ठीक है। होप सो आपां सैटरडे संडे की बजाय हुण सीधा नैक्सट आपां मंडे लैक्चर लगाइए। सो थोड़ा जिहा कोऑपरेट कर लेना राजे, ठीक है जी। ठीक है एवरीवन। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट होए कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करना है। बाकी होमवर्क क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिआ NEP 2020 के बारे। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कदों आई सी, सैकेंड एजुकेशन पॉलिसी कदों आई सी, थर्ड, इन्हां तिन्नां दे बारे तुसीं एक्सप्लेन करना है मैनूं उहदे विच कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं सारिਆਂ ਦੇ कमेंट रीड करांगी। थैंक यू एवरीवन। जेकर किसी बच्चे का कोई पेंडिंग रहिंदा लैक्चर, मैम हले सुनिया नहीं, सानू टाइम नहीं मिल रहा, तो तुहाडे कोल सैटरडे संडे 2 दिन है, आराम दे नाल डिस्कस कर लेना आपस दे विच, फ्रेंड्स दे विच। जेकर कोई डाउट रहिंदा तो कमेंट बॉक्स कर देना, नहीं तो आपां मंडे वाले सैशन 'च तुहाडे डाउट ले लांगे, ठीक है। ओके राजे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू।